Hello, hi, welcome, namaste. I am Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. As you all know that I have started the Joyful Journey, Your Path to Happiness podcast talk show. So today I have my dearest friend with me, Mrs. Shweta Jam. Thank you so much, Shweta ji, for coming and accepting my invite. Thanks, Preeti, to invite me as well. It was really an honor that you have invited me. Thank you. My pleasure. Same here, same here. So before we move forward, I would like to introduce her that Mrs. Shweta Jam is a rehabilitation psychologist and a special educator, which brings over 20 years of experience in the teaching and counseling across top institutions. Recognized for her ability to inspire and guide, she has counseled over 5,000 cases and conducted 700 plus sessions of life skills, excelling in stress management, family therapy, and youth counseling. Wow, what a great profile you have, Shwetaji. It's a great Thanks, pleasure to Preeti. have you. So as I mentioned that she is a psychologist also, so we have taken a topic on ADHD in children, its types and management. So the first question to you, Shweta, कि what exactly ADHD is? ये ADHD होता क्या है? Because most of the time ना I have seen the people getting confused कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं फिजिकली जो एक जगह टिक के नहीं बैठते या तो उनको ADHD बोलते हैं या फिर जिनको साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा इश्यू निकल के आता है तो what exactly is this? True. And very well said as well. Actually, this confusion, हमेशा ही confusion रहती ही है. Right. Because I work with the children who are studying in the schools as well. So Mhm. one is ADHD is like if I just break up that term, that is attention deficient hyperactive disorder. So Okay. hyperactive जो word होता है वो हमेशा misunderstood होता है by the term overactive. Overactive whereas the child is above the activeness. इधर से उधर जंप Mhm. करना उसके बाद एनर्जी ज्यादा है. जितनी Right. Right. एनर्जी है तो उतना वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा. लाइक यू कैन सी देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु who can do a 2 or 3 things together. So we can say it the child is having a overactive, Mhm. Okay. बहुत Right. ज्यादा Yes. एनर्जी होना. Right. Hyperactive is where is having a neurodiversity problem. That is a problem in the brain or a problem, ADHD, which is an actual problem which we will Yes. be describing in later on as well. तो Okay. हाइपर एक्टिव इज दैट. बट नॉर्मली जैसे आजकल स्ट्रेस का टर्म डिप्रेशन बहुत जल्दी इक्वली लिया जाता है. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु से कि हम डिप्रेशन में हैं. द सेम वे Mhm. द ओवर एक्टिव को हम टर्मोलॉजी यूज करते हैं हाइपर एक्टिव Right. की. Okay. So Okay. that Okay. is a one thing that hyperactive is a neurodiversity issue. So Mhm. when the child is having very hyperactive, वो चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है. राइट. Right. तो जब Okay. कंट्रोल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बोला बैठ जाओ तो अब उसकी Mhm. सेंसरी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स है. दैट मीन्स सेंसरी इंटीग्रेशन लाइक उसको टच करना ही है उसको या उसको Mhm. बैठे बैठे जोर से आवाज निकालनी है. इफ यू Mhm. सीन देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. वो दे आर स्टार्टिंग और एकदम से ऐसी आवाज निकालेंगे जोर से आहा करके. द होल अटेंशन कम्स टूवर्ड्स दैट चाइल्ड. बट Right. दे आर Okay. नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली. वो ये नहीं कर रहे कि अच्छा क्लास को Okay. डिस्टर्ब करना है इसलिए हमें निकालनी है आवाज. वो ऑटोमेटिकली उसका सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब उनका अंदर से सेंसर्स ये कहते हैं कि ओके दिस वॉइस नीड टू बी टेकन आउट. तो दे Okay. टेक आउट दैट वॉइस. सो दिस Right. आर द Right. Right. सेंसरी इंटीग्रेशन एक साथ में आता है. हाइपर एक्टिव होता है द चाइल्ड इज मोर हाइपर देन Mhm. इम्पल्सिव होना कि आपने अगर उसको हल्का सा धक्का दिया वो सोचेगा नहीं. वो पहले आपको इन रिवर्स एकदम धक्का दे देगा. तो दिस होल Mhm. टर्म कम्स इनटू दी हाइपर एक्टिव विच वी Hyperactive. कॉल्ड ADHD. बट इसके Okay. और दो टाइप्स होते हैं. वन इज इनअटेंशन. मतलब अगर आपने Mhm. उसको धक्का दे दिया इसका ऑपोजिट वाइसा वर्सा. Okay. इनअटेंशन में वो एकदम से डल रहेगा और अगर आपने उसको धक्का दे भी दिया तो ही विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड ऑन इट. मतलब कोई भी चीज का उसका Right. रिस्पॉन्ड बहुत ज्यादा स्लो में रहता है जिसको हम कहते हैं डे ड्रीमिंग करना. वो ऐसे Right. बैठा Okay. रहेगा. मैम पढ़ा रही है फिर भी सोचता रहेगा बच्चा. दैट इज देयर. Mhm.
इन दोनों टाइप को जो कंबाइंड टाइप होता है, दैट्स अ थर्ड टाइप. So this is a basic what I will explain you in the ADHD. ADHD term. तो और Okay. एक और चीज है, ADHD हमेशा कहा जाता है कि लड़कों में ज्यादा होता है. यू नो, ये तो लड़का Oh. है, ये तो हाइपर होगा ही होगा, इसके अंदर तो एनर्जी है ही है. ऐसा नहीं होता है. देयर आर मेनी गर्ल्स एज वेल हु हैव सफर्ड फ्रॉम ADHD, Right, बट right, right. नॉर्मली डोंट से दैट. Don't say that. They're very true and very gratefully and insightful things you have shared about this. कि ओवर एक्टिव और हाइपर एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है. ज्यादातर लोग जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई बच्चा ओवर एक्टिव है तो वो करेक्ट सेंस में रिस्पॉन्ड कर देगा सिचुएशंस को. बट जो बच्चा हाइपर एक्टिव है उसको जैसे साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा इशू है तो वो उस टाइप से या तो स्पॉन्टानियसली रिस्पॉन्ड करेगा या फिर एकदम से चुप ही हो जाएगा. So this is a great thing you have shared and very important thing the people should know कि हाइपर एक्टिव बच्चों को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे. अगर बच्चा आपको इतना एनर्जेटिक है और चार पांच काम इकट्ठे कर पा रहा है तो दैट मीन्स ही इज नॉट हाइपर एक्टिव, ही इज ओवर एक्टिव. राइट, या वेरी नाइस. एंड वेरी आजकल the another thing is screen time की वजह से, because the children are not able to take out their energy, so राइट. they are showing that lots of energy altogether. तो हम बहुत हम्म. जल्दी टैग कर देते हैं इसको तो ADHD है. तो ओह. whereas because the energy is not getting channelized, मेरी राइट, एनर्जी का राइट, राइट. चैनलाइज नहीं होगा तो मैं बैठकर ऐसे ऐसे करूंगी या कुछ करूंगी, टू टेक आउट दैट एनर्जी. मैं अपने एनर्जी. पैरों राइट. को मूव करूंगी, हैंड्स टू बी फिजिट. तो वो अच्छा. चीज को हम टैग कर देते हैं विद द ADHD. ओके, ओके. ग्रेट थिंग. तभी बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम जो है कम करो और फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा जाओ. That's why ट्रू. we as a coaches said this. But चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू एक्सप्लेन एनी अदर टाइप्स, मतलब अलग अलग टाइप्स को आप और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या होता है राइट. ADHD में. श्योर. जैसे मैं आपको एक बेसिक इम्पल्सिविटी का, जैसे मैंने टर्म यूज किया था इन स्टार्टिंग. इम्पल्सिविटी होते हैं द चाइल्ड डोंट थिंक बिफोर दे रिएक्ट. ओके. राइट. राइट. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने उन्हें कुछ बोला and the child get very responsive and he react in a very different way. कि जैसे राइट, उसने, राइट, राइट. मैम ने बोला कि why you are hitting this boy, right? हम्म. और आपने इसको क्यों मारा या आपने इसको ऐसे ऐसे कॉपी क्यों ली. तो वो हम्म. एकदम से ये नहीं सोचेगा कि टीचर बात कर रही है, सो आई नीड टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड देन आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट सॉफ्टली. ये बच्चा राइट. एकदम से रिएक्ट करके बोलेगा मैंने नहीं किया, इसने किया था. यू नो हम्म. सो दे हम्म. गेट वेरी लाउड. तो राइट, राइट, impulsive राइट. children, when they are getting little loud, जैसे वो थोड़े लाउड होते हैं या वो अपनी बात रखना चाहते हैं, हम उनको आर्ग्यूमेंटेटिव और बदतमीज कहने लग जाते हैं कि इसको मैनर्स नहीं है. राइट, ये राइट, तो राइट. मैं इससे बात कर रही थी और इसने रिस्पॉन्ड बैक बहुत एग्रेसिवली दे दिया. राइट. और दी अदर वे, एक बच्चे ने, अगर एक बच्चे को उसने बोला कि मुझे आपसे बात करनी है और दूसरे बच्चे ने नहीं हम्म. करनी है, बट ही वांटेड हम्म. दैट फ्रेंड्स, बिकॉज नॉर्मली आपने भी और भी अगर ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, जैसे LD है, और भी है, ऑटिज्म है, इन बच्चों के दोस्त बहुत कम बनते हैं, बट दे वांट टू गेट सोशली अटैच विद द अदर फ्रेंड्स. तो राइट, राइट, वो राइट. उससे बात करने के लिए जाएगा, उसको हल्का सा बुलाने के लिए, बट उसका पुश इतना लगेगा कि अगर वो गिर गया तो द ओके. होल ब्लेम्स कम्स कि इसने मारा है. वेयर एज राइट, वो राइट, टच करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा है दैट मेरे साथ खेल लो. राइट. सो दैट इज गॉट इट. समवेयर इम्पल्सिव चिल्ड्रन, जो हम उसको कहते हैं, दैट इज इम्पल्सिविटी. हम्म. देन द सेकेंड इज इनअटेंशन. दीज चिल्ड्रन आर हैविंग सो मच एनर्जी कि वो अपनी एनर्जी निकाल नहीं पाते हैं. तो वो हमेशा एक डे ड्रीम में रहेंगे. मतलब ये बच्चे बहुत हम्म. साइलेंट में रहते हैं, बट दे विल बी लाइक थिंकिंग ओवर. आपको लगेगा वो क्लास में ध्यान दे रहे हैं, बट वो कहीं लॉस्टेड है, ओके. कहीं अपनी स्टोरीज में अपनी. लॉस्टेड है. तो दैट राइट, इज राइट. इन अटेंशन, जिनके अंदर अटेंशन कम है. देन हम्म. एज एन अ कंबाइन क्या होता है, जो बच्चे इम्पल्सिव हैं, जिनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, वो, हम्म. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इनकी पॉजिटिविटीज भी इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं. बच्चे जो इम्पल्सिव है वो इधर से उधर घूमते रहेंगे, बट वो सब सुन रहे हैं. तो अगर टीचर कुछ पढ़ा रही होती है, दे नो इट वेरी वेल कि मैम ने आज ये पढ़ाया था, क्या स्टोरी पढ़ाई थी और उसके अंदर क्या क्या करेक्टर्स थे. एंड बिलीव मी,
ट्रेडिशनल जो हम बच्चों की हम बात करते हैं, आई विल नॉट से नॉर्मल और एडनॉर्मल बच्चे, बट एक ट्रेडिशनल बच्चे जो अगर हम कहें जो चुपचाप बैठ के सुन रहे, उनसे ज्यादा इम्पल्सिव बच्चों की कंसंट्रेशन होती है, ओके। because they are listening to you as well, they are doing their activities as well, and they are राइट। talking with their friends as well. So they are वाह। all round. So that is राइट it. राइट राइट। But only we don't know how to channelize that energy. और कंबाइंड में क्या होता है, ये बच्चे सुन रहे होते हैं बट इन अटेंशन में होते हैं, तो वो उसको रिमेम्बर नहीं कर पाते, तो फॉरगेटफुलनेस ज्यादा हो जाती है। ओके ओके ओके। तो दैट मीन्स इन द क्लासरूम अ टीचर नीड्स टू टेक केयर कि अगर ऐसे बच्चे हैं भी तो उनका क्या रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसके हिसाब से बच्चा है कैसा, rather देन ऑन द स्पॉट ट्रू रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग टू दैट सिचुएशन। जिस तरीके से आपने इतने ट्रू। वंडरफुल एग्जाम्पल्स के साथ बताया, बट दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो, ये जानना कि जो ये इस टाइप के बच्चे होते हैं उनका ऑडिटरी बहुत स्ट्रांग होता है। जो आपने ये चीज बताई है कि सुनते बहुत एकदम ध्यान से हैं एंड दे कैन रिटेन एवरीथिंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। So moving forward to this only, for the children with hyperactive impulsive ADHD, what are some of the effective ways to help them to manage their resilience and impulsive behavior? अब ऐसे बच्चों की हेल्प कैसे की जाए? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है, ये बच्चे पहले अब मतलब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स पहले तो नहीं थी, अब क्यों आ रही हैं। अब एब्सोल्युटली। इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारी पेरेंटिंग में कुछ चीजें हैं जो हमने बदल दी। जैसे कि सबसे पहला, रूटीन से काम करना। अगर आप राइट। देखेंगे आजकल बच्चे स्कूल्स जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन गए, नहीं मूड हुआ तो घर पे बैठ लिया। अगर ट्यूशन नहीं जा रहे, घर पे भी कर रहे, तो जब मूड करेगा तब होमवर्क करेंगे। कोई राइट सेट ऑफ रूटीन नहीं है। हमारे टाइम पे या आपके टाइम पे आपने देखा होगा, हमारे पेरेंट्स हैविंग अ सेट रूल कि अगर यस 6 o'clock उठना है तो 6 o'clock उठना है। इवनली अगर हम एब्सोल्युटली। सैटरडे संडे भी 6 o'clock उठ रहे हैं तो हम साइकिलिंग करने जाएंगे या खेलने जाएंगे, बट वी विल हैविंग बिल्कुल। अ सेट रूल्स अबाउट इट। राइट तो वो राइट। सेट रूटीन होना बहुत जरूरी है। अगर वो सेट रूटीन रहेगा तो द चाइल्ड नोज कि अच्छा ये स्कूल का टाइम है और ये पढ़ने का टाइम है जब मैं घर आ रहा हूँ। राइट। इसको मैं एक वे में समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड नीड टू स्टडी, लाइक आजकल आपने भी एज एन अ पेरेंट कोच आप भी जानते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि मैम ये पढ़ने नहीं बैठता है, इसको हम्म। पढ़ने बैठाना पड़ता है दिखाना और उसके पड़ता है। लिए राइट। मुझे फ्री होकर बैठना पड़ता है। तो अब हम्म। मदर फ्री हो रही है कभी नाइट के 9 o'clock, कभी फ्री हो रही है 4 o'clock, तो मदर राइट अपने हिसाब राइट। से बिठा रही है। बट अगर इन बच्चों को एक ही एग्जैक्ट टाइम पे बिठाया जाए, लाइक 4 to 5 इनका स्टडी टाइम बना दिया जाए, तो उसमें लर्निंग इनकी ज्यादा इंप्रूव होती है। बिकॉज हमारा जो एब्सोल्युटली। ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो क्लॉकवाइज चलती है। अब राइट। उसको अगर मॉर्निंग में उठने की आदत है तो सैटरडे को भी मॉर्निंग में उठेगा, छुट्टी होने के बाद भी। फिर हम बिल्कुल। खुद को कह देंगे अरे नहीं आज छुट्टी है, वी कैन स्लीप मोर। बट हम्म। क्लॉकवाइज बॉडी ब्रेन में, चलती हाँ। है, राइट तो राइट राइट। रूटीन होना जरूरी है। द सेकेंड, एब्सोल्युटली। फिजिकल आउटलेट्स। द आजकल अगर आप देखेंगे पार्क में बच्चे बहुत कम होते हैं, बिल्कुल। मतलब दे डोंट प्ले, दे राइट डोंट हैव राइट। एन, इवनली आई टेल देम, इवन वन इज दैट कि कुछ पेरेंट्स उनको एक्टिविटीज में ज्वाइन करवा देते हैं, लाइक राइट राइट स्केटिंग, डांसिंग एंड ऑल दैट थिंग, बट राइट। वो एक स्ट्रक्चर में एनर्जी चैनलाइज हो रही है। एक गेम खेलने में जो हमें सोचना है, जो हमारे माइंड का लगना है, देन फिजिकल हमारे वर्क होना है, वो सब राइट राइट। कोरिलेट जो इकट्ठे फ्री प्ले में होता है वो नहीं हो पाता है। एज अ ट्रेनर, राइट। अगर आप बैडमिंटन के लिए जा रहे हैं, तो ट्रेनर आपको रेगुलर वही प्रैक्टिस करवा रहा है और आप रेगुलर वही चीज कर रहे हैं। बिल्कुल। बट अगर हम बैडमिंटन फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, तो वो हम्म। थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। कभी कोई और फ्रेंड बहुत अच्छा हो सकता है, कभी फ्रेंड थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो उस हिसाब से हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो फ्री प्ले होना बहुत जरूरी होता है। तो दैट एब्सोल्युटली इज द एब्सोल्युटली। थर्ड वन। देन द थर्ड इज बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। कुछ चीजों में आजकल हम ये बोलते ही नहीं कि नो मीन्स नो। अगर बच्चे ने हम्म। कहा कि मोबाइल चाहिए, हमने दे दिया। दे अगर बच्चे दिया। ने कहा हमें चॉकलेट चाहिए तो हमने दे दी। राइट, सो वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स इज रियली इंपॉर्टेंट, कि अगर वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होगा
तो बच्चे समझ पाएंगे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। देन राइट राइट सेल्फ राइट। रेगुलेशन स्किल्स, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डीप ब्रीदिंग, काउंटिंग ऑफ 10। हम भी करते थे अपने टाइम पर, अगर पीटी मैम आपको भी याद हो, जब गुस्सा आता था हमारे राइट। पेरेंट्स कहते हैं 10 तक काउंट करो। राइट। आज क्या बिल्कुल। होता है, पेरेंट्स कहते हैं गुस्सा आ रहा है, इसको दे दो जो चाहिए, गुस्सा ठंडा हो यस जाएगा। यस यस। तो उसमें क्या होता है, जब हमारे सेल्फ रेगुलेशन हमने सिखाया ही नहीं है, तो बच्चे को पता, अच्छा मैंने धक्का दे दिया, मेरा काम हो जाएगा। टीचर या मैम जो एब्सोल्युटली। भी, जिनके आगे मैं धक्का दे रहा हूँ, मैम कहेंगे तू तो चुपचाप बैठ, ये ले ले ले। ये पकड़ राइट। लो, तो हाँ। सेल्फ रेगुलेशन स्किल सिखाना बहुत जरूरी है। और वेरी कुछ इंपॉर्टेंट। बच्चों को हम स्टेप वाइज एक्टिविटी करवाएं। जैसे इन बच्चों में लिखने की प्रॉब्लम्स बहुत आती है, दे डोंट वांट टू राइट। क्योंकि राइट। लिखने के लिए एक तो आपको सीधे होकर बैठना है, एल शेप में, हम्म। विच वी नॉर्मली से एल शेप, यू हैव टू सिटिंग पैटर्न। राइट। पेंसिल होल्ड करनी है। जो बिल्कुल। टीचर बोल रही है, सेंसरी मेरा लिसनिंग स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, और फिर मैं उसको कॉपी में इंटरप्रेट करना। जॉट डाउन कर रही हूँ। राइट राइट, राइट राइट। इंटरप्रेट कर रही हूँ। अब उसमें क्या होता है, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, दे डोंट वांट टू राइट, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज दे नॉट इंटरेस्टेड, उनके लिए ओवरबर्डन है। तो बिल्कुल। देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक इट इनटू अ स्मॉल टास्क। लाइक इन माय काउंसलिंग सेशन, आई नॉर्मली टेल द टीचर एंड टेल द पेरेंट कि पूरा पैराग्राफ देने के बाद आधा पैराग्राफ दो, उसको बोलो अच्छा इतना कंप्लीट कर लोगे ना, वी विल गिव यू अ रिवॉर्ड। बट द रिवॉर्ड कैन नॉट बी अ बार्गेन, यू नो, इट्स लाइक अ, हम्म अच्छा मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगी एंड ऑल दैट थिंग। अ रिवॉर्ड हम्म। मीन्स आपने कंप्लीट कर लिया, देन आई विल गिव यू 5 minutes मोर टू यू नो टू वॉच योर टेलीविजन, और टू डूइंग सम एक्टिविटी, या पास टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, इन दैट वे। Right, right. Absolutely. Such a wonderful things you have explained about this कि एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, प्लस इस टाइप के बच्चों को हैंडल करना भी इज हैट्स ऑफ ग्रेट टास्क द पीपल यू आर डूइंग। मतलब जिस तरीके से आप ये टेक्निक्स बता रहे हो ना, हर किसी को जानना भी बहुत जरूरी है, एज अ पेरेंट ऑल्सो एंड एज द टीचर्स ऑल्सो। आई वुड से दैट जो एजुकेटर स्कूल में वो एंड देखते हैं, जो जो एंड काउंसलर्स एक्चुअली देखते हैं। एंड Right. एक्चुअली क्या होता है, पेरेंट्स घर पे जो घर पे बच्चे के साथ फील कर रहे थे, वो टीचर्स को नहीं बताते। और जो टीचर हम्म। फील कर रहे होते, 90% आपने भी देखा होगा कि आजकल टीचर्स भी उतना नहीं बता पाते, कि अगर हमने कंप्लेन करी तो हाउ द पेरेंट्स रिएक्ट। हमारे पे, बट हाँ। इन बच्चों के साथ वी नीड टू बी बिल्ड अ ब्रिज, कि यस। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों इकट्ठे बैठ कर, अगर एक बिहेवियर पे, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर चाइल्ड को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, इम्पल्सिव ज्यादा हो रहा है, और एक बिहेवियर पे अगर हमको टेक्निक्स कंबाइन करके करेंगे, तो बच्चे के अंदर रिजल्ट ज्यादा होगा, मतलब अच्छा राइट आएगा। राइट सो वो राइट। ब्रिजिंग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये ज्यादातर ऐसा देखा भी गया है, स्कूल्स में भी देखा था मैंने कि जैसे कोई चीज अगर हाइड कर देते हैं ना, टीचर्स हाइड करते हैं अपने रेपुटेशन या अपने उसके ऊपर कि हाँ कल को बात हमारे ऊपर ना आ जाए कुछ, और पेरेंट्स Right. हाइड कर देते हैं हाँ कल को हमारे बच्चे के बारे में कुछ ज्यादा ही वो ना हो जाए। मतलब एक जो आप ब्रिज गैप करने की बात कर रहे हो कि एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो दोनों के दोनों उस बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, उस बच्चे के बेनिफिट के True, लिए true. यू पीपल आर डूइंग। So that understanding is very, very, very important. And thank you for giving this insight to the audience also. Now, what are the challenges do these children combined in the type of ADHD typically face, and how can the caregivers support them? इनके लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं? जैसे बच्चों, अभी तो हमने बात करी So, पेरेंट्स की और टीचर्स की, लेकिन इस बच्चों के लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वो तो कॉन्शियसली इतने अवेयर भी नहीं हो पाते इस right. चीज से। देखिए, सबसे बड़ा होता है, दे कांट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टास्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, Absolutely. अगर वो 2 मिनट के लिए बैठे हैं, इवन इफ यू विल टेक द क्लासेस विद द चिल्ड्रन और एनीबडी, वो 2 मिनट के लिए बैठे, उसके बाद वो ऐसे ही लेंगे, ऐसे करेंगे, यू करेंगे, यू नो दे विल मूव। उनके हैंड्स बहुत फिजिट्स होते हैं, सो दे विल मूविंग देयर हैंड्स विद द शीट्स। कभी रेजर चाहिए, कभी बाबा वॉशरूम ब्रेक लेंगे, बिकॉज उनके उनका स्पैन ऑफ अटेंशन इज वेरी लेस। If a typical children are having 5 minutes of span of attention, तो उनका 2 or 3 minutes का होगा। So ओके। after 3 minutes, they will change their pattern. You know, they राइट। ज्यादातर ये वाले बच्चे वॉशरूम ब्रेक, वाटर ब्रेक, या थोड़ी देर देर में मम्मा से कोई एक कहानी ऐसी बीच में डाल देंगे, जैसे अगर मम्मी पढ़ा रही है,
तो पढ़ाते पढ़ाते कोई कहानी, मम्मा स्कूल में ये हुआ था, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट एट दैट Right, टाइम, right, बट right, वो right, right. डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज दे गेटिंग वेरी मच, द ब्रेन ओनली कंसंट्रेटिंग लेस द टाइम, तो Yes, yes, उनका फोकस बहुत ज्यादा कम होता है। तो right. जिसको हम फिर कहते हैं कि अच्छा तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, तुम फोकस नहीं कर रहे हो, तो उसको Right. करवाने के लिए हम इनको इमेजेस के थ्रू अगर पढ़ाएं, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ाएं, या ड्राइंग्स Mm-hmm. के थ्रू पढ़ाएं, दैट मीन्स अगर कोई भी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं, कोई इमेज बनाकर समझाया और फिर उसको हमने थोड़ी देर दिया, तो उसकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, Okay. क्योंकि Oh, इमेजेस की पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब okay, okay. Got if I it. say, जैसे आपने भी एक सेशन में बोला था, देयर आर लॉट्स ऑफ मल्टी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, तो Intelligence. देयर Right, right, इमेजेस right. पावर, देयर विजुअलाइजेशन इज वेरी स्ट्रांग, तो Right, right, right. विजुअलाइजेशन के थ्रू वी कैन टीच देम, सो दैट Okay. इज अ वन टेक्निक। Right, right. देन कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स ऑन टाइम, अगर इनको आप कोई भी डेडलाइन दे दोगे, ये वो डेडलाइंस कभी फॉलो नहीं करते, इनकी अपनी डेडलाइंस होती हैं। दे इफ यू से कि एक काम मुझे अभी करके देना है, तो अगर Mm-hmm. अभी वो मूड में है तो वो करेंगे, नहीं है तो वो नहीं करेंगे। अगर वो मूड में, उस Right. काम को वो बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। तभी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि मैम अगर ये मूड में होगा ना, ये फटाफट पेपर खत्म कर लेगा, Hmm. बट अगर ये मूड में नहीं होगा तो पेपर खाली छोड़कर आ जाएगा। Right, तो right. उनके लिए वो कंप्लीटिंग ऑफ असाइनमेंट और टाइम रिजिड टाइम मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज द बॉडी इज वेरी इम्पल्सिव। Right. तो बॉडी इम्पल्सिव है, बॉडी हाइपर है, तो बॉडी चाहती है फटाफट काम को चेंज करना, Hmm. तो वो Absolutely. वो उस चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। दे Right, वांटेड टू right. डू इट, बट दे कांट कंट्रोल देमसेल्फ। Themselves. द थर्ड इज Got it. फॉलोइंग द डायरेक्शन। अगर आप तीन इंस्ट्रक्शंस इनको साथ साथ दे रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, आई imaginary I give the name Rahul, right? Mhm. So it's a very common name as well, so I'm just giving that name. No, no, no. Fine, Okay, fine. that Rahul, go in the kitchen, bring the water, and then keep the water, glass of water in the table. Table पे आपको रखना on the table, and go outside and brings your books. अब ये तीनों Mm. इंस्ट्रक्शन सुनते हुए वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। जो लास्ट वाली सुनते हुए या तो कंसंट्रेशन है या पहली वाले में, तो बीच Okay. वाली मिस आउट कर जाते हैं। तो ज्यादातर Okay. तब बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर्स ये कंप्लेन करती है कि सुनता नहीं है। मैं इसको कह रही, Hmm. जैसे टीचर जब इंस्ट्रक्शन देती है, लाइक फॉर एग्जांपल, ओपन योर बुक, राइट द डेट, राइट द क्लास वर्क, एंड देन स्टार्ट राइटिंग इट। तो ये बच्चे ज्यादातर डेट और वो सब लिखेंगे नहीं, तो टीचर आकर डांटेगी, तुमने सुनी नहीं मेरी बात, मैं तुम्हें कह रही थी डेट और ये सब लिखो। तो लिखो। वो जब तक वो कॉपी खोलेंगे, वो दो इंस्ट्रक्शन मिस आउट हो गए। तो राइट। उनकी फॉलोइंग ऑफ डायरेक्शन, फॉलोइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी पुअर होती है। तो नॉर्मली व्हाट वी कैन एक्सप्लेन द टीचर एज वेल, या पेरेंट्स को भी हम कहते हैं, एक इंस्ट्रक्शन दो, वेरी गुड, नाउ डू द सेकेंड इंस्ट्रक्शन। तो हम पैट करके, अपने टीचर्स क्या करते हैं, व्हेन दे आर टेकिंग राउंड, they pat on the shoulder of that child and say, now write the date and write the classwork. So राइट। वो बच्चे ने लिखा, so then सबको इंस्ट्रक्शन दी, एंड देन फिर पैट करके उसको एक रिमाइंडर दे दिया, या उसका ओके। नाम लेकर एक रिमाइंडर दे दिया, तो फोकस उसकी राइट। तरफ आ जाता है, बच्चे चला की जाता है। तरफ। राइट, देन राइट, राइट, राइट। they are having a control of their impulses, as I told you, they are very impulsive। तो अपने इमोशंस को, इम्पल्सेस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। लाइक इफ दे आर एक्साइटेड, दे शो यू दैट एक्साइटमेंट, इफ दे आर सैड, दे शो यू दैट सैडनेस। तो ओके। और इम्पल्सिव, अगर वो चाहते हैं कि वो ना मारे, और वो मार भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनको गुस्सा आया और कमिंग उन्होंने आउट ऑफ, हाँ, रिएक्शन दे दी, रिएक्शन दे दिया वो। कमिंग आउट ऑफ, राइट, राइट। राइट, राइट। तो उनके सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं, वो थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कम बनते हैं। अगर बनते भी हैं तो दे फाइट, कि तूने ऐसा रिएक्ट किया था, तूने वैसा रिएक्ट किया था, इन दिस वे। तो राइट, दीज आर राइट। दी प्रॉब्लम्स जो आती हैं विद दीज चिल्ड्रेन, स्पेशली विद द इम्पल्सिविटी एंड एडीएचडी का अगर मेन टाइप की बात करें। इन अटेंशन में थोड़ा सा एक चेंज आ जाता है, कि वो चाहते हैं कंसंट्रेट करना, बट वो उनके दिमाग में अपनी कोई ड्रीम्स चलने लग जाती है, अपनी कुछ विजुअलाइजेशन चलने लग जाती है, एंड देन दे गोज इनटू दैट लेवल। राइट, तो राइट, राइट। दैट इज देयर। एंड यस, एक्टिव। फॉर द केयर गिवर्स, एज आई ऑलरेडी गिवन दैट टिप्स, की
वी हैव टू ब्रिज अप, वी हैव टू इंक्रीज द रीइंफोर्समेंट। ऐसे बच्चों को अगर आप गुस्से में बोल दो तू ये नहीं कर सकते, तो दे विल से ठीक है मैं नहीं कर सकता, आई विल नॉट डू हम्म। इट। राइट यू नो राइट दे गिव अप वेरी इजीली। तो हमें से कहना इजीली। होता है वाओ आपने तो करके दिखाया, और अच्छा करके दिखाओगे, यू नो इन दिस वे। So these are the earlier also as I give share some techniques with the caregivers, bridging up ट्यूशन टीचर या टीचर के साथ एक एक पर्टिकुलर बिहेवियर्स पे वी नीड टू वर्क ऑन दैट, while राइट stating राइट it कि तू नहीं सुनता है तू नहीं मानता है, we can tell them ये सुनेगा मैम, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको हम ऐसे मोटिवेट करेंगे तो बच्चा करता है। राइट Yes. राइट। दिस थिंग इज बीन सीन ऑल्सो, एंड ये जिस तरीके से आपने ये बातें बताई हैं उससे तो ये लगता है कि इन चीजों के लिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ही एक तो खुद का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई रखने की जरूरत है, हम्म, तभी वो। और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, अगर उनके खुद के अंदर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो वो इस तरीके से, जैसा बोल रहे हो रिजिड होकर टीचर्स अब कभी बोल देते तू सुनता नहीं है, तू मेरी बात नहीं मानता है, तेरे को तो ये वो, तो ये सब चीजें कहना छोड़ देंगे फिर वो। द काइंड ऑफ true, द होल थिंग यू हैव एक्सप्लेन्ड, तो जिसका मेरे को यही एक क्रक्स समझ में आया कि इन लोगों का पेशेंस और उनके मेजर्स जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए टू हैंडल दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। आप पूरी क्लास के साथ एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पढ़ा रहे हो वो बात अलग है, वो चीजें है। बट जो बच्चे होते हैं एज ए टीचर व्हाट आई थिंक के ऑडिटरी विजुअल काइनेस्थेटिक होते हैं, वो लोग तो अपने उससे कर लेते हैं, बट ये बच्चे हट के हैं जिनका ऑडिटरी भी है और विजुअलाइजेशन तब है जब आप उनको कोई इमेजेस पर्टिकुलरली दिखा रहे हो, तब वो उस चीज को समझ रहे हैं। So that needs bit efforts, but yes, if you do it, then so it's wonders for their life also and blessings also. right, Great, true, great, true. wonderful. Acha, now uh, coming to the last question, what advice would you like to give to the parents who are overwhelmed by these challenges? अब मैंने पेरेंट्स की तरफ से भी देखा है कि जिनके बच्चे अगर बोल दिए जाए कि हाँ ये एडीएचडी है, सबसे पहले तो उनको थोड़ा उस चीज का वो लग जाता है, मतलब एक सेटबैक लग जाता है, वो एक तरीके का कि हाँ एक्सेप्टेंस बाय ही माय नहीं है। चाइल्ड नहीं हो जाती। और फिर उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे उनको आगे वो करना चाहिए, मतलब आप कैसे उसको देखिए क्या होता मोटिवेट। है, right. देखिए क्या होता है प्रीति, एंड आप भी समझेंगे, एज एन अ मदर आई हैव अ मदर, आई एम अ मदर ऑफ 2 kids, राइट। सो एज एन अ मदर नो बडी थिंक दैट अच्छा मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो, यू नो। और क्या होता है एडीएचडी, एलडी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, इसमें कुछ चीजों में बच्चे बहुत सुपीरियर, बहुत अच्छे होते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैम ये मूडी है, ये वैसे तो सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, ये मूडी है। जैसे अगर मैं पेरेंट से बात करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इन बच्चों की विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, या ये बच्चे राइट। ऑडिटरी आपको सब कुछ सुन रहे होते हैं, तो मदर हमेशा कहती है नहीं मैम इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस करना नहीं चाहता है। तो वी ओके। गेट इनटू दैट कि हमारे बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम कैसे है। और वो एक्सेप्टेंस लाने के लिए वो पेरेंट्स सुनने की बजाय वो डिनायल में चले जाते हैं कि राइट। भाई हमें जाना ही नहीं है काउंसलर के पास। वो डिनायल स्टेज पे चले जाते हैं। जब वो डिनायल स्टेज पे जाते हैं, विच आई ऑलवेज टेल देम कि आप प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर रहे हैं, आप इंक्रीज प्रॉब्लम कर को रहे कम नहीं कर रहे हैं। हो। अच्छा क्योंकि अगर अच्छा। आप डिनायल पे चले गए, आपने उस पे एक्शन करना ही बंद कर दिया। उस राइट। पे क्या होता है, बहुत पेरेंट्स नॉर्मली मारने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, और उससे क्या होता है वो बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट, मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही रहा है, राइट। प्लस राइट। हाइपर एक्टिविटी भी और हो जाती है खराब, क्योंकि बच्चा अपनी एनर्जी को चैनलाइज ही नहीं कर पा रहा है। आप ये देखिए एक बॉक्स में, इट्स लाइक वी हैव केप्ट द फ्रॉग। अब वो फ्रॉग जंप नहीं कर पा रहे, लेकिन वो फ्रॉग कहीं तो कुछ तो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा। और वो राइट। मूवमेंट कैसे निकलेगी बच्चे के और बिहेवियरल इश्यूज में। तो राइट। बच्चे जब आते हैं, एज आई ऑलवेज से आफ्टर 6 years हम बच्चे की असेसमेंट करवा सकते हैं, विच इज द असेसमेंट ऑफ एडीएचडी और इनअटेंशन। जो हम टाइप्स ऑफ एडीएचडी की हम बात कर रहे हैं, उसमें फिर कुछ डिपेंड ऑन द लेवल्स मेडिकेशंस होती हैं। मेडिकेशंस इनअटेंशन या फोकस इंक्रीज करने के लिए, हाइपर एक्टिविटीज के लिए दी जाती है। आजकल होम्योपैथिक में भी इसका इलाज बहुत अच्छा है, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक में भी अच्छा है। कुछ के लिए वो मेडिसिन चलती हैं, बट कुछ के अंदर कुछ टेक्निक्स चलती हैं। तो हम पेरेंट्स को हमेशा कहते हैं वर्क विद दैट टेक्निक। जितना जल्दी हम वर्क करेंगे, अगर वो माइल्ड है प्रॉब्लम, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगी एक टाइम के बाद कि प्रॉब्लम थी।
राइट। बट अगर वो मॉडरेट सिवियर लेवल है। पे है या सिवियर लेवल पे है, तो फिर हमें मेडिकेशन और उस पे वर्क करना पड़ता है। राइट। माइल्ड, अगर मैं कहूँ माइल्ड में ये होता है कि बच्चा क्लास में अच्छा है, गेटिंग अ गुड स्कोर्स, बट नॉट एबल टू सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह ओके। पे बैठ नहीं सकता है। या लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब बच्चे को टच करने की सेंसरी हो रही है, उसको टच करना है कुछ चीज को, तो वो अपने आप, क्लास में टीचर पढ़ा रही है, वो अपने आप उठेगा, बोर्ड को टच करने आ जाएगा, तो टीचर ओके। डांटेगी कि आप हम्म। क्यों उठे, आपको बोला नहीं था, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास एंड ऑल दैट थिंग। बट उसकी वो सेंसरीज है। तो हम बच्चे को ड्यूटीज दे सकते हैं क्लास में कि अच्छा बेटा, आप जाकर ये कॉपी स्टाफ रूम में रखा ना, या आप ये रजिस्टर्स इधर रख दो, या आप ये कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उससे क्या होता राइट। है, उसकी सेंसरी ऑफ टच एडजस्टेबल हो जाती है। राइट। प्लस कभी कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी जरूरत पड़ती है टू मेक द चाइल्ड सिटिंग सेटल पैटर्न्स को डाउन। इम्प्रूव करने के लिए। सेटल जैसे डाउन। ओटी में बिग बॉल्स होती है उनके पास, और उसके थ्रू वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उनकी हम्म। रिफ्लेक्शंस को ठीक करते हैं। तो ओके। ये कुछ थेरेपीज भी होती है। प्लस एज एन अ काउंसलर हम सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हम बच्चे के साथ करते हैं उसके बिहेवियर पैटर्न्स को ठीक करने के लिए। ओके। सो ग्रेट। ग्रेट। that is, it's a combined work. It depends that what kind of problem child is coming in, और उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। बट उससे पहले राइट। मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स का रेडी होना जरूरी है। अगर पेरेंट्स रेडी एब्सोल्युटली। रहेंगे, एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, तो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इन एब्सोल्युटली। दैट वे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपने, विच इज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, कि यस, बेनिफिट्स हम फैमिली कैसे करें, और पेशेंस लेवल बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उनको सोशल स्किल्स, पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज, जैसे मैम आप भी बड़ी बार सेशंस में, प्रीति मैम, आप लेते हैं कि हम कुछ चीजें ना कर देते हैं कि ठीक है, अभी मांग रहे दे हम्म। देते हैं, बट वो हम्म। टेंट्रम्स में आ जाता है, द ट्रू। सेम वे वो पैटर्न बन जाता है। तो राइट। राइट। पेरेंटिंग राइट। स्ट्रेटजीज हमें बच्चे के हिसाब से करनी पड़ती हैं। फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की होनी जरूरी होती है। राइट। फिजिकल राइट। एक्टिविटी कैन बी साइकिलिंग और एनीथिंग। जब वो राइट। होंगी, तो उससे क्या होगा, उसकी एनर्जी ऑलरेडी हाफ वेंटिलेट हो जाएंगी। प्लस ये जो हमारे पैक्ड फूड्स होते हैं, आप अगर देखेंगे ओरियो, लेज, इनकी एक अलग फ्रेग्रेंस है। तो देयर इज हम्म। केमिकल्स इन इट। बच्चे राइट। जितना खाएंगे उतनी उनकी क्रेविंग बढ़ती है, और क्रेविंग बढ़ती है तो अटेंशन कम होता है, टमी फुल हो जाता है, बट ओवर एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि शुगर ज्यादा। कंटेंट ज्यादा है। तो ओके। जब शुगर कंटेंट ज्यादा है तो हाइपर एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ बढ़ बच्चे जाता ओवर एक्टिव से हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं, है। क्योंकि अब I see there's a many children in the morning while waiting for the bus, standing in the bus stop with the parents, and they are eating the chips, कुरकुरे खा रहे हैं, लेस के पैकेट खा रहे हैं, एंड हाँ। these kinds of cookies are there। तो उससे हम्म। क्या हो रहा है, उसकी हाइपर एक्टिविटी ऑलरेडी इतनी हाई जा रही है, तो वो क्लास में इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनेगा, उसकी एनर्जी चैनलाइज हो ही नहीं रही है। हो ही नहीं रही है। तो वो राइट। राइट। इंस्ट्रक्शन सुनने में या घर पे आकर पढ़ने में प्रॉब्लम देगा, कि काम कंप्लीट नहीं एब्सोल्युटली। करना एंड ऑल दैट थिंग। तो पैक राइट। फूड्स राइट। हमारा कम होना चाहिए, फिजिकल राइट। एक्टिविटी ज्यादा, पैक फूड कम, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। राइट। टुडे इज अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, आई ट्रूली अंडरस्टैंड, बट वो स्ट्रेस निकल कहाँ रहा है, बच्चों पे। बच्चों को। तुम ये नहीं कर सकते थे, तुम्हारे पीछे ही मैं लगी रहूं, द पेरेंट्स say these kinds of statements एग्रेसिव होके which बोल देते child comes and child complained about it। हैं। राइट। राइट। तो वो बच्चे को कनेक्शन तोड़ देते। तो वो जब एब्सोल्युटली। कनेक्शन टूट गया, तो द चाइल्ड यू नो नॉट गेट टू हाउ टू मैनेज द इमोशंस। तो वो राइट। बहुत हो राइट। जाता राइट। है। वेयर आई ऑलवेज से, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, फिजिकल एक्टिविटी नीड टू बी इंक्रीज, packed foods, junk foods to be lowered down. The third, positive reinforcement really important. Positive reinforcement, I will not say कि सिर्फ उसको ऐसे बोलना कि नहीं नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है, बट उसको समझाना भी। क्योंकि कुछ पेरेंट्स है, मैम हम इसको रेगुलर पॉजिटिव रीइंफोर्स करते हैं,
बट देन आई आस्क, आपने उसको स्टेप्स क्या बताए कैसे दिया? रीइंफोर्समेंट में, राइट, राइट। कैसे दिया? तो ये तीन चीजें अगर होने लग जाएंगी, बच्चे के साथ हैंडलिंग करना, बच्चे को उसके बिहेवियर्स को हैंडल करना बहुत आसान हो Right, right. Absolutely. Thank you so much for these golden nuggets you have given today for the audience also. And I would request the audience also कि अगर आपके बच्चे के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डोंट टेक इट एज अ सेटबैक फॉर योरसेल्फ। पहले तो आप अपने अंदर का उस के अंदर उसको रिग्रेट मत बनने दो कि हाँ मेरे बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम है। बिकॉज उस बच्चे के लेवल पे वो चीज बहुत बड़ी है। हम तो कभी भी मतलब एज अ पेरेंट उस चीज को हम स्टेबल भी हो जाएंगे आगे जाके, लेकिन उस बच्चे के लेवल पे वो चीज बहुत बड़ी है जिसको यही नहीं पता कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। एंड द वे मैम हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग कि किस टाइप से आपको उसको हैंडल करना चाहिए। एंड ट्रस्ट अस, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। एडीएचडी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना मतलब बिना अवेयरनेस के इतना बड़ा उसका वो बना दिया जाता है कि हाँ ये बच्चा तो एडीएचडी है, ये नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ सकता। ठीक है, नहीं पढ़ सकता, बट काउंसलर्स कैन बी देयर। आप अलग से स्ट्रैटेजीज बना के उस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हो, जिस तरीके से मैम ने आज सारी की सारी स्ट्रैटेजीज अपनी एक्सप्लेन करी है। एंड थैंक यू सो मच श्वेता फॉर कमिंग, एंड इट्स ग्रेट एंड लवली टॉकिंग टू यू on such a sensitive topic. सेम हियर। And थैंक यू, I would, सेम हियर। my pleasure, my pleasure. And I would request the audience also that I'll be sharing this video everywhere. If you have any query regarding anything, अगर आपके बच्चे में भी एडीएचडी नहीं है, आप इस टाइप की प्रॉब्लम भी कहीं देखते हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हर, शी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सेम सो हियर, मच। थैंक यू। हैप्पी पेरेंटिंग।